हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान नर्सरी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। देयर आर सम जेनेटिकल और मॉडिफाइड प्लांट आर herbicides and pest resistant, and are genetically they are modified tobacco plant containing a gene from to the fabulous and emit of green light. Here is the most important though. There are BT crops. There is a, what is mean to the BT crop? The BT crops are genetically modified crop and therefore also is called transgenic crop. There is a BT is also called to the transgenic crop. There is the modified crop. And the name of BT crops because the transgenes are their foregone genes transferred into crop by the soil is a bacterium Bacillus thermogenesis means BT, the Bacillus, and the bacterium is a Bacillus thuringiensis. It means to the BT. The transferred genes is a transgenes is a not a harmful to be host crop into the was are genotypes. The genes has been to the added. It is a code for a is a protein is called cryoprotein. There is a code for a protein is called cryoprotein. The bacteria is a BT live in the soil. In the genotypes, there is a genes called as cry genes, which are produced on insecticides, insect killing protein. That is called insect killing protein. A BT crops produce this protein when the insect pest eat the BT crop. The cryoprotein is converted into the toxin substance by the enzyme present in the stomach of the pest. This tonic substance kill the pest, and the chrysogenes has been to isolate and transfer it into many crops. Example: cotton, maize, brinjal, tomato, and tobacco as a test in the field, and they are resistant to the insect attack. Use of BT crops reduce this need for a spanning insecticides to kill to insect pest, and insecticides are harmful to human and other animals. There is a most important here. The insecticides are harmful to human and other animals. However, but BT crops can be only be cultivated after permission from a government of India. The under Environment Protection Act means EPA. Their Environment Protection Act is the most important. This is because the internal is very there. The first is the sun BT crops make the toxin throughout their growing season. The pest may be involved with are BT distance. And second is non-target species like the butterflies may be die if they feed on BT pollen. There is a very bad here. There is a non-targeted species like a butterfly is a dead for the BT is a feeded on the dye and the BT pollen. There is a very dangerous and genetically modified crops may be harmful for the environment as they may be pass the genes into the close relative plant which may be a useless for a human but prejudice to the सुपर वीड्स। अगर देखा जाए परजीवी पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होती है तो प्लांट्स में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कुछ आनुवांशिक रूप में रूपांतरित पादप जो है शाकनाशी या पीड़क जीवी प्रतिरोधी होते हैं, यानी शाकनाशी या पीड़क जीवी प्रतिरोधी भी होते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित तमाकुल के एक पौधों में खाद्य तोड़ यानी जो है फायर फ्लाई का एक जीन प्रविष्ट कराया जाता है जिसके कारण यह हरा जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि अगर रूपांतरित तमाकुल के पौधों में अगर जुनून यानी फायर फ्लाई का एक जीन प्रविष्ट कराया जाए तो जिसके द्वारा जो होता है हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीटी फसलें। देखिए बीटी फसलें अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं ये फसलें जो होते हैं आनुवांशिक रूप में रूपांतरित पादप होते हैं जिन्हें परजीवी फसलें भी यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कहते हैं। इन्हें बीटी फसलें इसलिए कहा जाता है क्योंकि परजीवी अथवा जो है विजातीय जीन को जो है मृदा जीवाणु यानी बैसिलस यूरोजेनेसिस यानी बीटी द्वारा फसलों में स्थानांतरित किया जाता है। यानी एक जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बैसिलस कहते हैं। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है बीटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम इसको बीटी फसलें भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित जीन का जो है परजीन उस परपोषित जीन के लिए हानिकारक नहीं होता है, यानी ये जो होती है परपोषित जीन के लिए हानिकारक नहीं होता है जिसके जीन प्रारूप में जीन डाला गया हो। लेकिन यह
काई प्रोटीन नामक जो है प्रोटीन को कोडित कर देता है, यानी ये काई प्रोटीन नामक प्रोटीन को ये कोडित करता है, जो कि अलग बात यहाँ पर रखती है। अगर देखा जाए बीटी जीवाणु मृदा में पाया जाता है। इसके जीन प्रारूप में एक जीन होता है जिसे हम काई जीन लिखा जाता है, जो पीड़कनाशी यानी पेस्ट मारने वाला होता है, यानी पीड़कनाशी होता है, पेस्टिसाइड जिसे आप कहते हो, यानी पेस्ट मारने वाला जो है केमिकल होता है। प्रोटीन का स्वेद करता है और बीटी इसी प्रोटीन को उत्पन्न करता है। देखिए, जिसको मारने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है वही प्रोटीन जो है बीटी जो है उत्पन्न करता है। यानी जब कोई पीड़क कीट बीटी फसलों को खाता है तो इसके आमाशय में विद्यमान एंजाइम क्राई प्रोटीन में बदल देता है और उस पीड़क के कीट खा जाता है। यानी इस प्रकार जो है पीड़क कीट को खा जाता है, जो कि काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं अगर देखा जाए काय प्रोटीन की पूर्तिकृत कर दिया जाता है और अनेक फसल जैसे कपास हो, मक्का हो, बैगन हो, टमाटर हो और तमाकुल में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा खेतों में इसका परीक्षण भी किया गया है। ये फसलें जो है कीटों पिड़कों आक्रमण के लिए प्रतिरोधी का कार्य भी करता है। बीटी फसलों पर कीटनाशियों का छिड़काव करने की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि पीड़कनाशी मानव एवं अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। देखिए, बीटी फसलों पर कीटनाशी का छिड़काव करने की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि पीड़कनाशी आपको पता ही है कि मानवों और जंतुओं के लिए कई मायने में हानिकारक होता है और कई मायने में उनके लिए जो है बहुत ही बुरा प्रभाव भी डालता है। फिर भी बीटी फसलों के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी न्यू दिल्ली यानी ICAR की अनुमति के बगैर नहीं उगाया जा सकता है। ये इसलिए कि कीट वैज्ञानिक निम्न बातों को से काफ़ी चिंतित है, इन बातों से काफ़ी उनको प्रभावित भी किया है। तो पहली बात तो यही था जो उनको काफ़ी प्रभावित किया था, वो था क्योंकि बीटी फसलें अपने उगाए जाने की समझ अवधि में अविष उत्पन्न करती है, यानी जितना टाइम इसको उगाया जाता है ये सिर्फ विष ही उत्पन्न करता है, यानी जहर ही उत्पन्न करता है, जिसके कारण पीड़क बीटी के लिए प्रतिरोधकता का उत्पन्न भी कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम वही चीज़ दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाला टाइम में कीट जो इसका प्रतिरक्षा तंत्र बन जाए। तभी तो आपको देखते हो कि जो बहुत से मच्छर होते हैं मरते नहीं हैं। आज जितना भी फास्ट गार्ड, मोर्टीन जितने भी जला लो उस पर कोई असर नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसके क्या हुआ प्रतिरोधक क्षमता उनका जाग चुका है और उसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वे जाति जिनके मरने का लक्षण नहीं होता, जैसे जो तितलियां हो जाए, लेकिन बीटी पराग पर जो भोजन करने पर वो मर सकती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जिनको हम नहीं मारना चाहते हैं वो भी जीव इसके वजह से मर जाएंगे। तो ये बहुत बीटी जो है बहुत काफ़ी खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है और पर्यावरण में उपस्थित कई जीवों के लिए ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकता है क्योंकि वे इन जीन के उसे संदृढ़ संबंध पौधों में पहुंच जाता है जो मनुष्य के लिए बेकार हो सकती है, लेकिन अतिरिक्त अपूर्णता के रूप में जो है फलती फूलती भी रहती है। तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी नुकसान भी है। तो इसको साइंस को इस बात को समझना चाहिए कि इसके चक्कर में दूसरे जीव भी अपने प्राण को त्याग देंगे। तो इसलिए इसको अभी प्रमाणित नहीं मिला है और इसको जो है इस्तेमाल भी करने की मनाही की गई है क्योंकि ये जिसको लगाया जाता है उस समय से ये विष उत्पन्न कर लेने लग जाता है और कई मायने में जो दूसरे जीव होते हैं उनको भी नष्ट करने के लिए अपना योगदान दे देता है। तो ये कई मानने में थोड़ा सा खतरनाक है। यही बात जो है साइंटिस्टों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।